being a social activist, how will you feel? जिम्मेवारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं और मेरे पास अब 150 बच्चा है जिसकी मैं एजुकेशनल अडॉप्शन हेलो दे रही हूँ। Wow, 150. Yes. And in no time. इन नो टाइम। और मैं लोगों के घरों में जाके देख रही होती हूँ, उनके पास खाने को खाना नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे अपना अंश जो भी है दुगना करना है और इसे सोसाइटी के लिए करना है। आज के टाइम पे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने सिर्फ सिंगल चाइल्ड के पेरेंट बनना है क्योंकि महंगाई इतनी है, हम खर्चे नहीं उठा सकते। एडॉप्शन एक बहुत बड़ी चीज है, प्रॉपर जिम्मेवारी। हाउ कैन यू मैनेज? ये कोई आध्यात्मिक सफर नहीं है, ये सिर्फ एक सेवा है। ये समाज सेवी तो लोग बन जाते हैं कि देखने के लिए या सोशल मीडिया के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, लेकिन वो फंड कहाँ से आता है? आप अपने बच्चों के शौक मार के दूसरे बच्चों को खिला पिला रहे हैं। कोई एक ऐसी घटना जिसकी कहानी आपको सबसे ज्यादा छू गई? उनके हस्बैंड को स्ट्रोक आ गया था, ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, तो वो उनके बॉडी पैरालाइज हो गई और वो बहुत अच्छे घर से हैं, गाड़ी वाड़ी सब कुछ बिक गया। और जब एक मेल आके रो रहा है और मतलब वो बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, सलाइवा मुंह से गिर रहा है, उनको भेजने के बाद तो मैं बहुत रोई। मतलब मेरे गूज़बम्स आते हैं ऐसी बातें करके। This is so tough, Yes. actually. मतलब जो फील कर रहा है पता नहीं उसके साथ क्या बीत रही होगी। Yes. सुनते हुए ही कुछ होता है। भगवान पे सवाल कर जाते हैं ना कि ऐसा भी होता है, आप ऐसा भी कर सकते हो। मेरा बेटा श्रीलंका में है, बहुत पैसा है उसके पास, और वो बोलता है पापा आपसे स्मेल आती है तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा। मतलब आप शायद ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं सबसे, इसलिए शायद आंसू हैं जो आ रहे हैं। हमारे यहाँ शुद्ध आती नहीं है, मतलब स्टेबल रहते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਨੀ ਅਨੇਜਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰਭਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੰਨਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਛਾਨਨੀ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਭੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਨਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਉਸ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਵੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੈਣ, ਮਾਂ, ਆਂਟੀ, ਮਾਸੀ, ਚਾਚੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਲੇਡੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਵਿਦ ਪ੍ਰਭਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਬੈਟਰ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਫ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਪਤਨੀ, ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ। ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਓ, ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ सोशल एक्टिविस्ट, हाउ डू यू फील? दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि हाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एक होता है जिम्मेवारियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं,
बट मेरे पास अब 150 बच्चा है जिसकी मैं एजुकेशनल अडॉप्शन हेडू दे रही हूँ। Wow, 150. Yes. And in no time. इन नो टाइम। Yeah. मतलब मैंने मार्च में स्टार्ट किया और करते करते आज मतलब मैं यहाँ पे शो पे आने से पहले भी बच्चे की एजुकेशन अडॉप्शन, एक शादी सेवा, वो सब करके आई हूँ। हाँ। तो ऐसा नहीं होता कि हम लोग एक ही चीज़ पे चल रहे होते हैं कि जिम्मेवारियाँ हैं। और मेरे को जितने लोग मिलते हैं वो कनेक्ट करते हैं, वो एक ही चीज़ बोलते हैं, मैम कैसे करना है या आप कैसे कर लेते हो। तो इट्स नॉट कैसे कर लेते हो, जो इतनी एफर्ट आती है वो कंसिस्टेंट ही है जो आती है। मतलब अगर हम इस पर बात करते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अब शादी सेवा है तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, या किसी की स्कूल की फीस है तो उसको बुक्स भी चाहिए, स्कूल बुक्स के साथ साथ उसको स्कूल नोटबुक्स भी चाहिए, शूज़ भी चाहिए। बच्चों के पास शूज़ नहीं होते, वो नंगे पैर स्कूल जा रहे होते हैं या टूटी चप्पलों में स्कूल जा रहे होते हैं। तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जो मतलब मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट जब मैं अब प्रैक्टिकली यहाँ पे हूँ और मैं मतलब लोगों के घरों में जाके देख रही होती हूँ, उनके पास खाने को खाना नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे अपना अंश जो भी है दुगना करना है और इस सोसाइटी के लिए करना है। शिवा जी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब दैट डे, वो कौन सा दिन होता है जब आपको लगता है कि नहीं, समाज में इन चीज़ों के लिए, इन लोगों के लिए आगे आना चाहिए? कहते हैं हमें कोई ना कोई एक एग्जाम्पल मिलता है, कोई ना कोई ऐसा एक इंसिडेंट हमारी लाइफ में होता है। सो वो इंसिडेंट क्या था कि अचानक एकदम आपने सब कुछ ही बदल दिया कि सेवा की तरफ चले गए? या होता है कि एक एज फैक्टर आता है जब आप सुपरस्टिशियस या वो आध्यात्मिक सफ़र की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, ये वो था या कोई इंसिडेंट हुआ था? ये कोई आध्यात्मिक सफर नहीं है, ये सिर्फ एक सेवा है। और यकीन लगाइए मेरा कोई एनजीओ भी नहीं है, मैंने कोई नाम भी नहीं रखा है इसका। मैं सिर्फ सेवा करती हूँ। मतलब मेरे पास लोग अपने आप आके कनेक्ट करते हैं वाया सोशल मीडिया कि इसको ये चाहिए, इसको व्हील चेयर चाहिए, मतलब ये कहीं हमारे पड़ोस में रह रहा है उसके लिए कुछ चाहिए, तो उससे मैं चेन रिएक्शन है जो रहता है। और हाँ, बैड डेज होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बट अगर उसमें बोले कि एक बैड डे, तो ऐसा नहीं था कि सेवा उसके बाद स्टार्ट हुई है, पहले भी होती थी बट सोशल लाइफ में नहीं आ रही थी। और अभी ज़्यादा हो गई जब से मेरा बेटा है जो आगे पढ़ने चला गया। तो या तो नॉर्मली फीमेल्स उस टाइम में डिप्रेशन में चली जाती हैं कि घर खाली हो गया है, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको अपनी स्ट्राइव में लिया, उसको दुगना ऊपर परफॉर्म किया। और अब मुझे लगता है 150 बच्चे के साथ मैंने श्योर अदा के लिए होता कि थोड़े रुको यार, तुम्हारे को भी टाइम देती हूँ, बाकियों को भी देने दो, ऐसा रहता है। वही एक बारी दोबारा से कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो जहाँ से इसकी शुरुआत हुई हो। सबसे पहले कौन आया था आपके पास? सबसे पहले आप किसके लिए मसीहा बने थे? बहुत सारे लोग हैं, और एक बार में मैं काउंटर करना चाहूँगी। जब मैं एक्टिवा पे जा रही थी तो एक लेडी के पास नंगे पैर जा रही थी। तो मैंने उसको अपनी चप्पल उतार के दे दी। ठीक है, बहुत ब्रांडेड होती है, बट आपको देने में एक बारी के लिए कुछ हुआ तो रह कि तू ले, पहन ले यार। ऐसे ही गाड़ी में जा रही होती हूँ तो मैंने देखा कि बच्चे बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे बसेस में से कुछ मांग रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। तो वो बहुत बुरा लगता है मुझे। तो मैंने फिर वहाँ से सोचा कि कुछ खाने के लिए देते हैं। अब वो ऐसा चेन रिएक्शन है कि मैं से ये नहीं होता कि मैं एक बिस्किट का पैकेट दे दूँ, फिर मैं राशन सेवा, मतलब ऐसे करते करते चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। इट्स नॉट कि एक इंसिडेंट ने मुझे हिलाया, चेन रिएक्शंस थे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स के। और मुझे लगता है जब हमने अपना थोड़ा रफ पैच देखा होता है और जब आप किस काबिल पहुँच जाते हैं या किसी एक लेवल पर पहुँच जाते हो कि अब हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने काम किया। अब मुझे लगता है कि येस, आई एम सस्टेनेबल, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। तो मैंने और लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया और अब बहुत सारे लोग हैं जो साथ जुड़ते जा रहे हैं। नहीं, वी कैन सी ऑन सोशल मीडिया कि ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है और खुशी होती है देखकर जिस तरीके से ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। आपने आज भी जिक्र किया कि 150 बच्चे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब है तो काउंटेबल चीज़ है कि हम उंगलियों पे गिन सकते हैं 150 बच्चों को, लेकिन एक बच्चा आज के टाइम पे, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने सिर्फ सिंगल चाइल्ड के पेरेंट बनना है क्योंकि महंगाई इतनी है, हम खर्चे नहीं उठा सकते, राइट? पहले फैमिलीज होती थी, बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन उस टाइम पे 150 बच्चों की एजुकेशन, उनका खान पीन, उनका रहना सहना, एडॉप्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है, प्रॉपर जिम्मेवारी। एग्जैक्टली। और वो हाउ कैन यू मैनेज? ईजी होता है। मतलब पहली बार तो हम लोग अरे इसे 24 घंटे हैं, हम कैसे करें? मुझे तो 24 घंटे बहुत बड़े होते हैं। इफ़ यू जस्ट प्लान योर डे, आप प्लानिंग नहीं करते। हम सुबह से रैंडम अपना एक दिन है जो चला रहे होते हैं, लाइक ठीक है जैसा चल रहा है वैसे चलते रहो। नहीं, मुझे मालूम है कि सुबह मैंने उठना है, उसका मैंने सेवा लगानी है, तो वो पहले तैयारी है जो होएगी। अगर मैं आपके पास आई हूँ तो अब से मैं तैयारी करके आई हूँ ना, ठीक है मुझे यहाँ जाना है, मुझे पहुँचना है, मेरे पेशेंट्स को मेरे को सेटल डाउन करना है, ये वो। तो ऐसा नहीं है कि आप सेवा को साइड लाइन लेकर चलते हो, मैं इसको मेन स्ट्राइड में लेकर चलती हूँ और उसी तरह ही काम किया जाता है। अगर हम इसको ऐसे फॉर्म करें कि नहीं मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को अपने बच्चों के लिए देखना है या सोचना है, नहीं।
मतलब अगर एक बच्ची आ रही है जिसकी एजुकेशन अडॉप्शन है, तो मुझे ये भी याद रखना है कि उसके मेंसेस भी हैं जो आते हैं, तो उसकी सैनिटरी सेवा भी है जो लगती है। और बच्चों के पास पैंटीज नहीं होती है, ब्लूमर्स नहीं होते, वो बेसिक चीज़ें नहीं होती जो कि हमें लगता है कि यार बहुत नॉर्मल और नेचुरल और है। हम सोचते भी नहीं Exactly. इन चीजों की तरफ तो ध्यान कोई ही ध्यान नहीं नहीं जाता। जाता। वो लगता है कि बस एजुकेशन अडॉप्शन आ गई तो बहुत है। मतलब आज जो बच्ची थी वो मुझे बोलती है मैम स्कूल शूज़ ले दीजिए प्लीज़, वो छोटे हो गए हैं। तो बच्चे छोटे जूते ही पहन के चलते रहते हैं। मतलब आप सोचो कि कितना डिस्कम्फर्ट है अगर हमारे को हील भी चुभती हो तो, राइट। और आप उसमें नॉर्मल स्ट्राइड में लेके चल रहे हैं कि कोई बात नहीं हम चेंज कर लेते हैं। उनके पास स्कूल शूज़ नहीं होते, लोग नंगे पैर स्कूल जा रहे होते हैं, वो भी तब अगर गवर्नमेंट से उनको पता है कि आज मिड डे मील में कुछ खाना अच्छा मिलेगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं होता। मतलब वो खुद के लिए लेके आएंगे, फैमिली के लिए ले आते हैं वहाँ से। मतलब वहाँ पे वो चीज़ें हैं जो हिला देती हैं। मैंने नहीं कभी उम्मीद की थी कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी, बट इतने लोग कनेक्ट होते जाते हैं। मतलब कल कॉल था किसी को व्हील चेयर चाहिए और वो बंदा पैरालाइज्ड है, और कैसे हुआ, बहुत अच्छे घर से था, फ्रूट बेचता था, फ्रूट की रेडी है, एक्सीडेंट हुआ और उसका नीचे का धड़ है जो ख़त्म हो गया। तो वो बंदा भी पैरालाइज हो गया और फैमिली भी ख़त्म हो गई, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हर एक चीज़ के लिए ऑब्वियस है कि बहुत पैसा है जो लगता है। तो इतनी चेन रिएक्शन आना शुरू होता है। एक 4 महीने की बेटी, एक 1.5 साल का बेटा है, आप क्या बोलोगे? तो इतना टफ होता है चीज़ों का, मतलब यू नेवर नो। और जब लाइफ आपको ऊपर नीचे घुमाती है ना, तो मैंने देखा है बहुत गंदे तरीके से घुमाती है। अच्छा, एक सवाल है, ये सवाल कड़वा भी हो सकता है ना, क्योंकि अक्सर ये सवाल ना बहुत सारे व्यूअर्स इस टाइम पे देख रहे होंगे और उनके जुबान पे आता है, कमेंट्स भी हो सकता है हमें ऐसे सवाल के लिए आए। सो सवाल मेरा पहले ही पूछना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपने अभी एनजीओ नहीं बनाया, कोई एनजीओ नहीं है, आप जस्ट सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं, लेकिन फंड, हर चीज़ के लिए फंड चाहिए होता है, वो फंड कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आज के टाइम पे ये भी कहा जाता है कि समाज सेवी तो लोग बन जाते हैं कि देखने के लिए या सोशल मीडिया के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, लेकिन वो फंड कहाँ से आता है? क्या उस फंड की कलेक्शन आप अपनी जेब से कर रहे हैं, आप अपने घर से निकाल रहे हैं, आप अपने बच्चों के शौक मार के दूसरे बच्चों को खिला पिला रहे हैं, या कहाँ से वो सेवा आती है? सेवा ऐसा होता है कि जैसे कि मेरे साथ फैमिलीज़ हैं या मेरे पेशेंट्स हैं जो जुड़ते हैं, तो उनके साथ वो कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हर एक को मेरी फेस वैल्यू है या एक ट्रस्ट है जो हम बिल्डअप करते हैं। तो लेट्स टेक इट कि समबडी फील्स कि मुझे 500 रुपये डोनेट करना है, तो वो 500 रुपये ना मैं लेती हूँ, ना मैं उन बच्चों के पेरेंट्स को है जो देती हूँ। अगर सिंगल मदर्स हैं या जैसे मैंने आपको बताया एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, तो किसी को नहीं दिया जाता, डायरेक्ट पैसा उनके स्कूल में है जो जमा कराया जाता है और वो रसीद है जो उनको भेज दी जाती है। सो दैट क्रिएट्स ट्रस्ट एंड इट्स अ चेन रिएक्शन। हाँ, डेफिनेटली आपको अपनी पॉकेट से भी देना पड़ता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो अपनी पॉकेट से भी देना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि देना चाहिए। मतलब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम बहुत पीछे छोड़ के चले जाते हैं कि ठीक है कोई गिर गया तो कोई बात नहीं, कोई कौन उठाएगा। तो ये क्यों सोचना कौन उठाएगा, ये क्यों नहीं सोचना कि हम कब उठाएंगे। तो हम अगर ऐसे कोई नंगे पैर जा रहा है या कोई ऐसे जा रहा है, हम अपने घर की पुरानी चप्पलें या बच्चों के पुराने टॉयज़ लेके क्यों नहीं अपनी गाड़ी में साथ चल सकते? एवरीबडी कैन डू दैट, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक एफर्ट है जो लगती है कि आपको एक लिफाफा साथ लेके जाना पड़ता है, तो ठीक है, इट्स ओके, बिग डील। मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे। अपने आप में कुछ चेंज नजर आया सब्र इन दिनों में? यस, सब्र बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई अग्रेसिव भी होता, मुझे लगता है ठीक है कोई बात नहीं, रिलैक्स, बहुत बढ़ गया। मतलब अगर कोई ऐसे फीमेल जा रही हो, उसके साथ मुझे अकेली फीमेल नहीं दिखती, मुझे उसका सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है कि वो घर में अगर राशन का कर रही है तो कैसे कर रही होगी, उसके बच्चों की फ़ीस का वो कैसे कर रही होगी, अपने पति की दवाइयों कैसे कर रही होगी, इंक्लूडिंग उसके सैनिटरी सेवा के लिए वो क्या कर रही होगी। मतलब मैं आगे तक देखना शुरू कर देती हूँ उसके लिए। मतलब सब्र बढ़ गया है, पेशेंस लेवल तो ऐसा हुआ है कि मुझे समझ ही नहीं आता। एक सुकून बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब अगर किसी दिन जैसे टाइफाइड था अभी थोड़े दिन पहले, तो ठीक है बहुत आप रिवाइव नहीं कर रहे हो, तो एग्जर्शन चल रही है, तो मैंने 5-6 दिन वीडियो नहीं डाला, ना मैंने कोई सेवा की। मुझे ऐसा लगा कुछ मिसिंग है यार, कुछ रह गया। तो जब तक वो चीज़ का हिस्सा बन गया। यस, अगर मेरे को लगता है पूरे दिन में कुछ नहीं किया तो कुछ रह गया। मतलब अगर शूट है तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को सेवा करके आनी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब उसके लिए कुछ हिलेगा नहीं, ऐसे रहता है। अच्छा, जब घर पे इस बारे में बात की गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, और ख़ास करके एक लेडी के लिए बहुत सारे रिश्ते भी जुड़े हुए हैं, और ख़ास करके हम उस डेस्पोरा से आते हैं जहाँ पे बेशक एक लड़की शादीशुदा है या नहीं है, बट उसने अगर कोई बड़ा स्टेप उठाना है तो उसको पेरेंट्स की, भाई की, हस्बैंड की, बच्चों की, सबकी एक परमिशन की ज़रूरत होती है, राइट? सो जब घर पे इस बारे में डिस्कशन किया गया, आपका फर्स्ट थॉट आया कि मेरे को सेवा करनी है, मेरे को हेल्प करनी है, तो व्हाट वाज द रिएक्शन? आर दे ओके विद दैट? इनिशियली नॉट,
ओके। मतलब बहुत ऐसा नहीं था कि हाँ हाँ ठीक है प्लीज़ प्लीज़ करो करो कोई बात नहीं, बट धीरे 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 जब लोगों से दिखते हैं, मतलब मेरे पास जो डोनेशंस हैं केरला से आती हैं, लोग अपने पुराने कपड़े केरला से भेजते हैं, यूएस से लोग हैं जो डोनेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत दूर दूर से लोग हैं जो कनेक्ट करते हैं। और ऐसा कहीं नहीं है कि ये नियर डियर के ही है कि हाँ मुझे कोई जो जानते हैं, ऑल आर कनेक्टिंग वाया सोशल मीडिया। और जब वो लोग लोगों का ट्रस्ट देखते हैं, मुझे लगता है अब मैंने फैमिली में ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर लिया कि ठीक है यार अब तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ मतलब इनिशियली तो शौक ही होता है सबके लिए कि यार आप अपने घर को तो देखो, आपको सबके लिए क्यों देखना है। इनिशियल ब्रेक्स में जाएगा वो, बट देन आपको रुकते रुकते रुक जाते हैं, सब फिर सेटल डाउन हो जाता है कि ठीक है यार मेंटल हेल्थ वहीं पे जाके ज़्यादा बेटर हो जाती है। आप ज़िंदगी में हर रोज़ की मरम ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, जी। बच्चों से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से, यूथ से, हर किसी से कनेक्ट कर रहे हैं। और हर किसी की मेरी तरफ से मतलब अपनी कहानी है, हर कोई अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए बैठा हुआ है ना। सो बहुत सारी ज़िंदगियों की कहानियाँ आपको जानने का मौका मिल रहा है। कोई एक ऐसी घटना या कोई एक ऐसा इंसान जिसकी कहानी आपको सबसे ज़्यादा छू गई, जिसने आपको कहते हैं कि कई बार हिला के भी रख देता है कि सच में भगवान, हम भगवान पे सवाल कर जाते हैं ना कि ऐसा भी होता है, आप ऐसा भी कर सकते हो। एक बोबा बयाल से लेडी हैं, उनके हस्बैंड को स्ट्रोक आ गया था, ब्रेन स्ट्रोक आ गया था। ब्रेन स्ट्रोक में आपकी जो धड़ है वो रुक जाता है या पैरालाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उनके बॉडी पैरालाइज हो गई और वो बहुत अच्छे घर से हैं और गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, मतलब सब कुछ बिक गया। वो बिल्कुल प्रैक्टिकली फर्श से नीचे जो हम कहते हैं वहाँ आ गए। उनके 2 बच्चे हैं जिनकी प्रैक्टिकली फ़ीस अभी मैंने भरी है, व्हील चेयर से लेकर सब कुछ उनको सेवा है जो दी है। तो वो लोग का जब आके मेरे से बात की और जिस हिसाब से वो मतलब जो मेल आया और रो रहे थे वो, मतलब ठीक है मेरे पास औरतें आके रोती हैं, दैट इज़ टेकन, बट जब एक मेल आके रो रहा है और मतलब वो बता नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, सलाइवा मुँह से गिर रहा है, उनको भेजने के बाद तो मैं बहुत रोई कि यार ये क्या है। और जब मैं उनको सेवा देती हूँ राशन की या कुछ भी, अगर हम इनको सेवा देते हैं तो वो मुझे हमेशा बोलती हैं कि मैम मैं लोगों को देती थी, आज मैं इस लाइन में खड़ी हूँ लेने के लिए। वो बहुत हिलाने वाली चीज़ होती है, मतलब ये क्या है। एक और इंसिडेंट था, मतलब मेरे गूज़बम्स आते हैं ऐसी बातें करके। दिस इज सो टफ Yes. एक्चुअली, मतलब जो फील कर रहा है पता नहीं उसके साथ क्या बीत रही होगी। Yes. सुनते हुए कुछ ही कुछ होता होता है। और मतलब जैसे अभी मैं एक JCI का क्लब हमारा था, हेल्थ कैंप था, तो हेल्थ कैंप में हम सब अपना प्रोफेसर सब सारे पेशेंट्स और सब डॉक्टर्स लगे हुए थे। तो बाई चांस लोग आने शुरू हो गए पेशेंट्स का जैसे जो रहता है, और वो 3-4 इंसिडेंट बुजुर्ग लोग हैं जो आ रहे थे। तो मैं थोड़ी क्या हो रहा है, तो वो मुझे ये पूछ रहे थे कि हमारे पास ना खाने के लिए नहीं है बट हमें ताकत चाहिए। तो 2 मिनट तो आप चुप हो जाते हो क्या। और जब वो बताते हैं बातें कि हमारे किचन को लॉक लग जाता है, हमारी किचन खुलती नहीं है, सुबह 11 बजे तक किचन खुली होती है, मेरे पास बाथरूम में गीज़र है, उस वाले पानी से मैं पानी यूज़ कर सकता हूँ। मतलब 2 मिनट सुन के ही कुछ होएगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, बाथरूम वाले पानी से आप वो वाला पानी यूज़ कर सकते हो, उससे चाय बना सकता हूँ जी। मतलब यहाँ तक लोग हैं जो चले गए हैं। एक और उस नहीं, मतलब 3-4 बुजुर्ग आए और तीसरे वाले बोलते हैं कि मेरा बेटा श्रीलंका में है, बहुत पैसा है उसके पास, पर वो बोलता है पापा आपसे स्मेल आती है तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा। मतलब ऐसी जो चीज़ें होती हैं, गूज़बम्स तो छोड़िए, मतलब वो तो रुला देती हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या हम सो कॉल्ड सोशली बहुत मॉडर्न और वेस्टर्न हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर तो गाँव का रहना ज़्यादा बढ़िया होता है। मतलब दिस इज़ टफ, वेरी टफ, एक्चुअली वेरी टफ। व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि ये सवाल बहुत सिंपल सा है बट बहुत बड़ा है अपने आप में। ये सवाल तब बन जाता है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ इजी है, हम अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस है, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, फ्रेंड सर्कल हाई फाई है, प्रॉपर सोशली वी आर एक्टिव एंड ऑल, दिस इज व्हाट लाइफ इज। नो, बट दिस इज नॉट लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लाइफ? आई वर्क इन कैंसर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मैं ICU CCU में ही काम करती हूँ। तो मुझे वो क्लैरिटी है कि जब लाइन अप डाउन के बजाय स्ट्रेट जाती है ना, वो हज़ारों बार मेरे सामने होती है, जो चीज़ पहले हिला देती है। तो उसके बाद सीरीज़ है जो शुरू होती है। तो मतलब लाइफ इज़ नेवर सिंपल। बट अब इस चीज़ को लेके, मतलब अगर मैं ऐसे सोचूँ मेरा बेटा नहीं है घर पे, मेरी बेटी घर पे नहीं है, तो मुझे उन दोनों को मैं याद कर करके रोती रहूँ, या अरे वो आ जाओ यार हम बात करते हैं। तो आप अपने आप को प्रोडक्टिव वे में बिजी क्यों नहीं कर सकते? दैट इज़ लाइफ। लाइफ इज़ नॉट कि ठीक है जो आ रहा है उसको ले लिया, हम ऐसे खा लेंगे पी लेंगे। नहीं यार, अपनी क्रिएटिविटी कहाँ, आपका अंश क्या छोड़ा आपने मार्क क्या छोड़ा? जब आपने अपना मार्क ही नहीं छोड़ा, सोसाइटी पे इफेक्ट ही नहीं छोड़ा, तो मतलब वो तो फिर आप आए और आप चले गए, वो तो आप मुसाफिर रह गए ना। मुसाफिर क्यों बनना, इम्पैक्ट क्यों क्रिएट नहीं करना, हमें अलग क्यों नहीं बनना दूसरों से? हम बात करते हैं वखरे हैं, हम दुनिया से वखरे हैं। कैसे वखरे हैं?
अगर हम ही अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने भाई भाभी की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, हम फैमिली की इज्जत नहीं कर पा रहे, आप कैसे बख रहे हैं? आप अपनी भाभी के लिए स्टैंड लें, दैट इज़ डिफरेंट। सहेलियों के लिए तो हर कोई ले लेगा, बड़ी भाग के लेंगे कि शी इज़ माई फ्रेंड। नहीं, आप अपने बेटे के लिए तो हर कोई लेगा स्टैंड, अपनी बेटी के लिए लेके जो दिखाते हैं दैट इज बकरे। मतलब आप सोसाइटी में इम्पैक्ट तो क्रिएट कर सकते हो जब आप खुद से शुरुआत करते हो। हम खुद पे तो करते ही नहीं है। हमें लगता है कि नहीं यार ये क्या स्टार्ट करना है, ये तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है, मम्मी तो बाद में ही खाना खाएगी, पहले पापा खाएंगे, बराबर क्यों नहीं? तो इट इज़ ऑल अबाउट द इक्वालिटी। यस, इट इज़, दैट इज़ लाइफ। जब आप अपने आप से मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं, और सीरियसली ये चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं होती, एक बार एक चेन रिएक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। मतलब पूरे हॉस्पिटल में मालूम है कि कोई बहुत गरीब बच्चा आ गया या कोई ऐसी फैमिली आ गई, तो शिवा मैम है, उनसे कोई ना कोई हेल्प है जो मिल जाएगी। तो आपको एक सिर्फ एक अश्योरेंस देनी है सबको कि यार मैं हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक छोटी सी जगह से रह के इतना कुछ क्रिएट कर सकती हूँ, तो कोई भी बंदा कहीं पे रह के भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक NGO स्टार्ट करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं तो लोगों से पुराने कपड़े मांगती हूँ कि आप पुराने कपड़े दे दो, पुराने बर्तन दे दो, कि वहाँ पे लोगों को आज जिनकी सेवा थी शादी की, जो बच्ची इतना रो रही थी, देवर मॉम डन, वो बच्ची इतना रो रही थी क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया है, वो माँ बेटी शेड में रहते हैं और वहाँ रहते हैं जहाँ पे गाय भैंसें रहती हैं साथ में। मतलब जो लोग मेरे पास आते हैं, मतलब मेरे को 5 मिनट लगता है अपने को स्टेबल करने में कि अच्छा प्लीज़ आप बाहर बैठिए, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं स्टेबल होकर फिर आपकी सेवा लगाती हूँ। तो ये ईजी नहीं होता, रोज़ किसी का इतना दुख सुनना ईजी नहीं होता। बट जब मैंने बताया ना सब्र और सुकून मिलता है, तो फिर आपको एक स्ट्राइव आती है कि ठीक है यार, एक पैर ऊपर, एक पैर और ऊपर, एक पैर और ऊपर। बट हाउ कैन यू मैनेज, क्योंकि इंसान है हम, और जब इंसान होने के नाते हम किसी के दुख सुनी जा रहे हैं डेली और हज़ारों की तादाद में, वो भी एक से बढ़कर एक, है ना, हम दुख सुनी जा रहे हैं, तो अपने आप को मैनेज कैसे करते हो? अपने आप को मैनेज करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट इज योर इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो? कई बार तो मुझे लगता है आउटबस्ट आ जाता है और बहुत अच्छा आ जाता है। कई बार तो मैं बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के 5 मिनट बैठ जाती हूँ। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्यों प्रूव करना है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं? क्यों प्रूव करना है? किसके लिए प्रूव करना है? हमें इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। आप प्रूव किसको करते हैं? आज इनके लिए आप बहुत अच्छी हैं, कल आप उनके सबसे बुरी हो जाएंगी, बाय डिफॉल्ट होंगी। आप अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छे हैं, जिस दिन आपने खाना नहीं बनाया उस दिन मम्मी सबसे बेकार हो जाएंगी, मम्मा ने मेरा काम नहीं करा। वेरी ट्रू। हस्बैंड के लिए करेंगे तो हस्बैंड का भी बाद में रहेगा, यार आज घर साफ नहीं है, क्या बात, राइट? तो आप जिनके खुश करने की मुहिम में चल रहे हैं, वो तो आपसे कोई खुश होंगे नहीं, तो दूसरों को तो करने की कोशिश किया कीजिए। बट एक लेवल, दैट इज डिटैचमेंट। मैं इन सबसे एक चीज़ सीखती हूँ कि एक लेवल मैं डिटैच हो गई हूँ, मैं एक लेवल पीछे चली हूँ सबसे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे धाम जाना है, मुझे वहाँ की बातें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो उन्होंने मेरी सेवा लगाई है, मुझे और क्या करना है। मतलब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग भक्त हूँ बिहारी जी की, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलती हूँ कि हाँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पर मुझे तो वृंदावन जाने की ज़रूरत ही नहीं है यार, क्योंकि ये तो सिखाया जाता ना, हर इंसान में भगवान का रूप होता है। आप सेवा करते हो ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 20 लड़कियों की शादियाँ करवा चुकी हूँ, 5-6 लड़कियों का मैं निकाह करा चुकी हूँ, 150 तो सिर्फ एक एजुकेशन अडॉप्शन के हैं। कितनी लड़कियाँ हैं जो कि प्रैक्टिकली करवाई गई हैं, ठीक है, जहाँ पेशेंट्स के बच्चे नहीं होते वो करवाए गए हैं। तो आप अलग लेवल देते हो सबको, तो आप कनेक्ट करते हो इमोशनली, तो वहाँ पे आके आप धोखा नहीं दे सकते, वहाँ पे आके आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार कुछ रह गया, नहीं। फिर तो आपको लाइफ 100% चलनी है तो 100% ही चलनी है। बट देन इन ब्रेक्स, आप सोचो यार आज ही मेरे को भगवान ने पता नहीं क्या मैजिक बैंड दे दिया और मैं सब कुछ कर दूंगी, नहीं। हम लोग इन्जॉय करना भूल गए हैं, हम लोग लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, हम लोग शायद लाइफ को सिर्फ ऐसे जी जाते हैं कि ठीक है हो गया। आइडिया भी नहीं होता कि 17 साल के बच्चे भी ICU आते हैं, उनकी भी डेथ होती है, और हम इस चीज़ को सोचते भी नहीं है, देखते भी नहीं, और हम सिर्फ भाग रहे हैं एक रेस में बिना बात की। और आपका किसी ने कहीं नहीं जाना है, आप रोड रेस देखो, ऐसे आप किसी को ओवरटेक करो, सामने ऐसे घूर के आपको देख रहा होता है एज ए पता नहीं हमने उसकी किडनी मांग ली होती है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, वी बिहेव इन सच स्टूपिड मैनर टू एवरीवन। और हर कोई बंदा एक मुखौटा लगा के घूमता है अपने मुँह पे, बहुत स्ट्रॉन्ग मुखौटा। आपका मेरे साथ कोई और फेस होगा, किसी और से कोई और फेस होगा, किसी और से और फेस होगा, आपका बॉस आएगा और अलग फेस होगा, आप फैमिली में जाओगे और फेस होगा। मतलब हम रियल लाइफ से दूर हो गए कि रियल लाइफ में चले गए, मुझे नहीं समझ में आता। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्श पे रहना चाहिए, इतना उड़ के फ़ायदा नहीं है। आई थिंक हम 2.5 घंटे की मूवी देखने जाते होते थे, वो सब बंद हो गई है, खुद हम प्ले करते हैं 24 घंटे की रियल लाइफ। एग्जैक्टली, है ना। मतलब इमोशंस कई बार मुझे तो नकली लगते हैं। जैसे कई लोग अपने आप ही आ जाते हैं फॉरवर्ड करने के लिए कि मैम हमें सेवा चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मैम आएगी सेवा देने के लिए, राइट। तो वो हम काफ़ी लोग चीज़ें ऐसे बात करते हैं। बट देन आप जब उनके डेथ सर्टिफिकेट देखते हो, और सब, मतलब कल एक बच्ची थी परसों, ऑटिस्टिक बच्ची है, ऑर्फन बच्ची है,
ऑटिस्टिक भी ऑर्फन में उसके ऊपर देखो कितनी दुगनी मार है। हम तो उससे बात ही नहीं करते, हम तो अपनी चीज़ों पे इतना चीखते चिल्लाते रहते हैं। मतलब आप शायद मेरी बातें सुन के इमोशनल हो रहे हो, मैं इतनी पक्की हो गई हूँ कि मुझे अब रोना ही नहीं आता। मुझे लगता है यार स्टॉप, लेट्स नॉट क्राई, काम करते हैं ना इनके लिए, मुझे रोना नहीं आता। मतलब मैं अपनी किसी दिक्कत से लेके रो पड़ूँ तो ठीक है, मतलब अगर कोई बंदा मेरे पास अपने किसी इमोशंस को लेके आ जाए तो मैं आराम से काउंटर कर लेती हूँ कि आप बैठिए, बताइए सेवा क्या लगानी है, उतनी, मतलब ओवरडू नहीं, मतलब ये चीज़। एक जरिया बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यू फील कंटेंटेड, यू फील कंटेंटेड, कंप्लीटेड, मोर देन कंप्लीटेड। मतलब अब लगता है कि यार हाँ कुछ करना है, कुछ अलग करने के लिए आए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे आके आपका अलग मोटिवेशन है जो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ कुछ और आना शुरू हो जाएगा, नहीं। आप शायद ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं भी सबसे, इसलिए शायद आंसू हैं जो आ रहे हैं। हमारे यहाँ अश्रुधार आती नहीं है, मतलब स्टेबल रहते हैं कि ठीक है वो बैठे हैं अपना साम लेंगे। आई डोंट नो बट ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना? Yes, yes. दिस इज एक्चुअली बीइंग रियल ह्यूमन। मतलब आप जब बात करते हैं अच्छा है, आंसू आना भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब आपका फेकनेस नहीं आती, एटलीस्ट आप जो हैं वो हैं। मतलब अगर मैं सपोज कीजिए आप कोई अपना कुछ बात लेके आई हैं कि मुझे ऐसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, मेरे को हेल्प आउट करो, और आप बात करते करते रो पड़े, तो मैं, ये नहीं है कि मैं आपको सुन के रोना शुरू हो जाऊँ। आई शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक इट कि हाँ बताइए दिक्कत कहाँ है, पहले उसको चैनलाइज करते हैं। बहुत लड़कियां हैं जो आती हैं कि मुझे शादी में इसमें नहीं रहना, ठीक है मुझे अलग घर बनवा दीजिए। तो अलग घर बनवाना नो सेंस, राइट? तो आपको समझाना पड़ता है कि बेटा ये कोई सेवा नहीं है, आपको उनके साथ ही रहना है, उन्हीं के साथ मर्ज होना है। घर को जोड़ना इज अ सेवा। एग्जैक्टली, वो तो हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि फीमेल शॉवलिज्म बहुत है, फिर मेल शॉवलिज्म बहुत है, क्योंकि सास की वो डोमेस्टिक वायलेंस वाला वो बहुत चलता है। आपको अपनी पावर किसी को देनी है, वो बहुत दिक्कत आती है। तो वो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और बहुत लोग जूझते हैं इन सब से, उनका मेंटल हेल्थ ख़त्म हुआ होता है। जो लोग मेरे साथ सेवा में आते हैं, मतलब टॉप शॉट्स, और उनका मेंटल हेल्थ ख़त्म हुआ होता है। दे लाइक मैं पहले पूछ के बताऊँ कि मेरे को 500 रुपये महीना देना कि नहीं देना, एंड दे आर हैविंग BMW जो घर के बाहर खड़ी होती है, ऐसे होता है। तो मतलब रियल फेस और रील फेस मैं दोनों देखती हूँ। तो मतलब फिर मुझे तो लगता है कि यार नहीं, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मुहिम इतनी सी है कि मेरे को 1000 शिवा बनानी है, उसके लिए जो मर्जी हो जाए, और मैंने बना के छोड़नी है। मतलब इसी मुहिम पे मैं लगी हुई। आपका नाम ही बहुत दमदार है। नाम सब, इस नाम से ऊपर कुछ नाम भी नहीं होता, इसमें खुद भगवान बसते हैं इस नाम के अंदर। और आपने जिक्र किया 1000 शिवा, पूरी दुनिया ही एक तरफ से कह जाए कि उनकी रचनाहार है ना? भगवान शिव जी को सबसे ऊपर सर्वोच्च माना जाता है। सो बीइंग अ वुमन, 1000 शिवा का आपने जिक्र किया। बीइंग अ वुमन, जब आप बाहर निकलते हैं, आप इस लाइन में आए, कुछ डिफिकल्टीज आई, चैलेंजेस आ रहे हैं? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। लाते खींचने वाले बहुत ज़्यादा। मतलब अब तो मुझे इतने ट्रू फेसेस दिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये सच है कि झूठ है। मतलब जब तक आपको सेवा चाहिए होती है, ठीक है, आप एक अलग फेज में आते हो, जैसी सेवा मिल जाती है आपका चेंज हो जाता है फेज। तो वो तो थोड़ा सा समझना मुझे मुश्किल होता है कि यार ये है क्या, कि पहले सच था कि अब सच है। बट आप सच झूठ के कपट से आप सेवा नहीं रोक सकते कि यार नहीं वो तो कपटी है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर मेरी ड्यूटी अलॉटेड है कि मुझे ये करना है तो वो करना है, मुझे उसमें दिक्कत नहीं आती। मतलब अगर मैं आपको आज का भी कैमरा नहीं वीडियो कॉल करूँ कैबिन की, मतलब वहाँ पे राशन सेवा पड़ी है, लोगों के पुराने कपड़े पड़े हैं, बहुत कुछ पड़ा है, और मतलब हम यही ढूंढते रहते हैं किसको क्या देना है। मतलब सब कुछ आप समेट के रखते हो। टू सी द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, दैट इज सेवा। मल्लो मल्ली सबको करना, दैट इज नॉट सेवा। अच्छा, कैसे जज होता है कि जो सामने वाला आया है, रो भी रहा है, अपनी हड्डबीती बता रहा है, अपनी जिंदगी कहानी आपसे शेयर कर रहा है, कि पता नहीं कि शायद वो वैसे ही आया हो, वो फेक भी हो सकता है। बहुत बार होता है कि वो जेन्युइन नहीं होते, जो सेवा लेने आते हैं वो कई बार होता है कि जेन्युइन नहीं होते। कईयों को होता है कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। एग्जैक्टली, बट वो उसका बेस्ट एक ही होता है कि क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो जैसे कोई कैंसर सर्वाइवर है, तो कैंसर की बीमारी ऐसी है जो आपको बहुत पैसा ले जाती है, खाली कर देती है टोटली, पीछे वाले सारे खाली हो जाते हैं। तो उनको भी तो हम बेनिफिशियरी दे सकते हैं ना। स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, तो मतलब वो अपने आप में टेस्टिमनी है। अगर स्ट्रोक पेशेंट है, पैरालाइज हो गया बंदा, बिल्कुल बेड रिडन आ गया, मतलब उसके पास सुसु पॉटी कराने के लिए भी कुछ नहीं है, राइट? आप समझिए कि आप कुछ भी नहीं करवा पा रहे हैं, तो कैसे आप उसको हेल्प आउट नहीं करोगे?
आप बिल्कुल करोगे और आप उसकी सारी सेवा लगाओगे। फिर तो व्हील चेयर भी जाएगी, राशन सेवा भी जाएगी, घर के गद्दे भी जाएंगे, सब कुछ जाएगा। ऐसे कनेक्टेड आते हैं, मतलब वो है टेस्टिमनी। ऐसे तो कोई भी फाइल लेके आ जाएगा, बट आपको मालूम होता है, इवन अब तो स्टाफ को पता है कि ठीक है हमें ये सब चीज़ों को भी सेवा लगानी है, तो लोग अपना भी चेन रिएक्शन में कनेक्ट करते हैं। मतलब विधवाओं के लिए, सिंगल मदर्स के लिए, सबके लिए होती है। So things apart, not getting more emotional. What are your future plans? 1000 ये शिवा सफर बनाना, कहाँ तक है? 1000 शिवा बनाना, किसी भी बच्चे को नंगा ना सोने देना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत स्ट्रांग है मेरा। And you मतलब manifest it daily? यस, मैं किसी को ना तो भूखा सोने दूंगी, ना मैं किसी को नंगा सोने दूंगी। मतलब उसके लिए दाव जो मर्जी हार जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप कोई चीज़ बोलते हो तो आप दाव नहीं हारते, आप हारते हैं, ठीक है। परिवार, बट सब समय, कुछ, आप सब सेहत, कुछ, सब आप क्लिनिक का आप टाइमिंग आप चेंज करते हैं, आप पेशेंट्स का लोड है जो चेंज करते हैं हॉस्पिटल का, बच्चों का टाइमिंग आप चेंज करते हैं, आप अपनी फैमिली लाइफ पीछे कर देते हैं, बट दाव बड़ा है। मतलब नहीं, ये अलाउड नहीं है, मेरी बुक्स में ये अलाउड नहीं है कि आप खाना भी खाएंगे, कपड़े भी पहनेंगे। मतलब मैं तो सीधा बोलती हूँ, आप टॉपर बन के आइए, जितने बच्चे मेरे पास हैं मैं सबको स्ट्रेट आके बोलती हूँ कि आप आके अपना बेस्ट मार्क्स दीजिए, मैं कॉलेज तक पढ़ाऊँगी, मैं पढ़ाऊँगी। मतलब आपको सोचना नहीं है, आई विल मेक यू स्टडी, जो पढ़ना पढ़ो। ये भी नहीं है, अब मैं कल ही थी, गवर्नमेंट में टीचर है मैम और रिटायर्ड थी, एंड शी सेड कि आप क्यों करवा रहे हो ऐसा, आप इन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों नहीं भेजते। अगर एक बच्चा अपने घर के पास किसी प्राइवेट स्कूल में है तो उसकी गलती नहीं हो सकती कि उसकी माँ को कैंसर हो गया या उसकी माँ चली गई, ठीक है, उसकी गलती नहीं है। तो उसको उसके कंफर्ट जोन उसी स्कूल में देना चाहिए कि या उसको निकाल के अलग स्कूल में डाल देना चाहिए और अलग इन्वायरमेंट दे देना चाहिए। और इतनी एफर्ट या तो मदर लेगी या फादर लेगा, ऑप्शन बच्चे के लिए कोई भी नहीं लेगा। तो वो चीज़ है, मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, विद क्लैरिटी कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा लगता कि, और एक और भी चीज़ है, मतलब जब लड़कियों की शादियाँ होती हैं हमारे में, कहने को हम दहेज प्रथा बहुत चीखते हैं कि हमें नहीं लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नाम बदल दिया अब तो, एग्जैक्टली कि हम अपनी खुशी से दे रहे अपनी हैं। खुशी से दे रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो लड़कियां आती हैं मेरे पास, उनके रंग और मुंह दोनों उड़े हुए होते हैं, हाईली सीवियरली माल नरिश्ड होती हैं, वो बच्चियां सिंगल हड्डी होती हैं क्योंकि उन्हें खाने को नहीं मिलता, अगर खाने को होता है तो टेंशन में होती हैं कि कुछ देने के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी लड़की को मैंने सुनने नहीं देना, जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है। उसमें ये हो सकता है या कपड़े लगा दो, मतलब मुझे तो लगता है किस्मत का खेल बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसमें अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो ठीक है, बहुत क्राउड फंडिंग हो जाती है और आप काफ़ी कुछ सेवा में दे सकते हैं। बट नहीं, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं बट बहुत, मतलब इम्पैक्ट डीपली क्रिएट। आज जो लड़की थी वो इतना रो रही थी, वो रुक ही नहीं रही थी कि मैम मैं क्या कर पाऊँगी, मतलब मैं गाय भैंसों के साथ रह रही हूँ, मेरे भाई ने निकाल दिया है, उसका भाई स्मैक पीता है, तो क्या बोलोगे आप। बहुत डिफरेंट है, मतलब लाइफ वहाँ लेकर जाती है जो हम सोचते भी नहीं है, वेरी डिफरेंट। There is no end. देयर इज़ नो एंड, एंड आई डोंट वांट टू एंड इट एक्चुअली, आई डोंट वांट टू एंड इट। मतलब अगर कोई मुझे ऐसा पूछता है कि कितनी शादियाँ और करवानी है और कितना करना है, तो मुझे लगता है कि बहुत करनी है, जितनी पायलें डाल सकते हैं तो ज़रूर डालनी है, ऐसा नहीं छोड़ना किसी को। कुछ वर्ड्स बोलती हूँ, वन वर्ड में आप बताना कि आपकी लाइफ में वो इम्पोर्टेंट क्या रखते हैं या आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। सो लेट्स स्टार्ट एट रिश्ते। प्यार जिंदगी, जीने का नाम है, सेवा, मोहब्बत, शिद्दत, सुकून, मोहब्बत, पति, बच्चे, प्यार, कनेक्शन एंड कन्विक्शन, पैशन, सेवा, डूइंग शोज एंड परफॉर्मिंग ऑन अनदर स्केल, सेटिस्फेक्शन, जाप, बहुत प्यार वाला जाप। मतलब अगर आप कनेक्ट करते करते रो पड़े तो शायद आपका जाप सफल है। ड्रामे के लिए तो बहुत लोग कुछ भी कर लेंगे। शिवा, 1001 शिवा बनाना और किसी को हारने ना देना, दैट इज शिवा। क्या बात है। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग। एंड जाने से पहले कोई एक मैसेज आप जो सोसाइटी को देना चाहते हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ जो भी आप बहुत गरीब बच्चा देखें, या ये नहीं होता कि वो भीख इसलिए मांग रहा है कि उसको फोर्सफुली कराया जाएगा। आजकल हम बेगिंग के ऊपर बहुत कर रहे होते हैं। कुछ बिस्किट, कोई पुराने टॉयज़ कुछ लेके अपनी गाड़ी में ज़रूर निकला कीजिए। शायद कोई है जो आपके लिए बहुत तरस रहा है। कभी आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाके क्रॉस कर रहे हो तो उनके लिए कुछ आप पुराने कपड़े ले जाइए। वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, उनके पास वो रहते हैं वहाँ पे। अपना पुरानी बेडशीट दीजिएगा, कुछ भी दीजिए, पर उनको सेवा में दीजिए। मतलब हम एहसान दिखा के देते हैं, फिर हम सोशल मीडिया पे बूस्ट करते हैं, देखो हमने ये किया। नहीं, ईजी।
और अगर आप राइट हैंड से तो लेफ्ट को नहीं पता चलना चाहिए। बट आज की दुनिया ऐसी है कि अगर आप थोड़ा बताएंगे तो अच्छा लगेगा, बट एक अच्छे तरीके से बताना चाहिए। लाउड एंड क्लियर किसी चीज़ को चीखना चिल्लाना मैं ये करती हूँ ज़रूरी नहीं है। आपका रब आपके लिए सबसे पहले खड़ा होता है जब आप कुछ कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर काम कीजिए। लोगों से थोड़ा सा हम्बल और प्यार है जो रखिए। मतलब हम तो इतनी नफरत में लेके अपने दिलों में लेके घूमते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम काउंटर भी कर पाते हैं उतनी नफरत को। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एक्चुअली में ना कई बार एक्चुअली आप जरिया बनते हो, है ना। हम सुनते थे कि भगवान फरिश्ते भेजता है अपने इंसान के रूप में, अपना बंदा भेजता है, और आपको पता भी नहीं होता, कई बार आपकी जेब में नहीं होता, बट वो भगवान डाल देता है कि नहीं उसको ज़रूरत है तो उसके लिए कर दे। मैं कल का एक इंसिडेंट, रीसेंट इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। द रीज़न इज़ कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और आप अपने बच्चों को, अपने घर से शुरुआत आप कैसे करते हैं, अपने बच्चों को आप इंसानियत कैसे सिखा सकते हैं। मैं ऑफिस से निकली, आई वॉज़ वेटिंग इन द मार्केट, और मेरी बेटी और हस्बैंड ने आना था वहाँ पर। वो पहुँचे, उससे पहले 1 मिनट पहले कोई रिक्शा वाले आते हैं, मेरे पास आके खड़े होते हैं, मेरी गाड़ी के शीशे बंद होते हैं, तो वो कुछ बोलने लगते हैं। मैंने शीशे डाउन किए, हालांकि हमें डर लगता है कि पता नहीं कुछ सामान ना निकल जाए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना। तो मैंने वो शीशा डाउन किया एंड ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, बट पता नहीं क्यों वो रोना शुरू हो गए। वहाँ पे आगे और भी जने थे, कहीं भी जा सकते थे। वो रोना शुरू हुए एंड ही वॉज लाइक, पिछले रिक्शा चलाते हैं वो अंकल थे, कहते पिछले 5-6 दिन से इस रिक्शा पे कोई नहीं बैठा, मैंने 10 रुपए भी कमाई नहीं की, और पिछले 3 दिन से मैंने रोटी का एक निवाला नहीं खाया। एंड इट हर्ट सो मच, है ना, कि क्यों। तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने मांगा नहीं पैसे, और बाय चांस हस्बैंड और बेटी एंटर करते हैं। तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने हस्बैंड को बोला मेरे को पैसे दो। मैंने वो निकाल के जो भी था मैंने वो उनको पकड़ा दिए, और वो हंसने लगे, खुश हो गए। वो स्माइल, एक सेटिस्फैक्ट्री स्माइल ना नज़र आती है आपको। और उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आज मेरे घर पे खाना बन जाएगा, मैं सब्ज़ी लेकर जाऊँगा, आज मैं सब्ज़ी खा लूँगा। वो बहुत बड़ी चीज़ थी, है ना। कोई भूखा नहीं सोएगा एटलीस्ट आज रात को। हो सकता है उनके घर पे बच्चे हो सकता है उनकी बीमार माँ या बीवी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना। तो उसके नेक्स्ट मोमेंट जब वो चले गए, मेरे को मेरी बेटी ने पूछा, मम्मा आपने उन्हें पैसे क्यों दिए, वो अंकल कौन थे, आप जानते हो, आपने पैसे क्यों दिए। तो मैंने कहा नहीं बेटू, उन्होंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि जैसे मम्मा जॉब करती है, मम्मा को सैलरी मिलती है ना, वो भी जॉब करते हैं, बट उनको सैलरी नहीं मिली थी, सो उन्होंने खाना नहीं खा पाए वो, इसलिए हमने जस्ट हेल्प कर दी उनकी। तो बोलती वो हैप्पी होके गए ना, तो आज वो हैप्पी हैप्पी खाना खा लेंगे। मतलब ये चीज़ समझाने का एक तरीका था। आप किस तरीके से शुरुआत करते हो। मैं तो नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, है ना। बट हो सकता है कि कल शायद वो बच्चे के दिमाग में हो कि हमने कुछ ऐसा देखना है, या हमारे सामने कुछ आए, तो हमने एक इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करना है। आज जब मैंने आपको बताया कि मैं सेवा करने के लिए आ रही थी और मैं उसके बाद ही यहाँ पे आई हूँ, वो छोटी बच्ची जिसके आज फीस दी है, तो मुझे बोली डॉक्टर बनने के लिए क्या करते हैं मुझे बताना। हाँ, sweet. मैंने भी बनना है। तो दिस इज व्हाट शिवा इज। अगर आप में इतना ही आ जाएगा तो चेंज अपने आप अपनाना शुरू होता है। ये नहीं है कि आपको बहुत हाई पोस्ट पे जाना है या ऐसा कुछ करना है सेवा के लिए। मुझे लगता है कि दिल अगर मैला नहीं है, अगर आपके दिल में सुकून है, तो चीज़ें ईजी है। एक्चुअली ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਦ ਇਹ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਲਵਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗਵਾਚਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਬਕਸ 'ਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਕਿ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੋ ਕਿ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸ਼ਿਵਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो अनफिल्टर्ड विद प्रवानी ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਈ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।